ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا بھائی افغانی میں خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ بہت مزے میں ہوں، کاروبار بھی بڑے زوروں پر ہے، روزانہ ہزاروں کا ٹرن اوور ہو رہا ہے۔ مزید خوشی کی بات یہ ہے کہ بندے نے کاروبار کو ترقی دینے کے لیے 50 لاکھ روپے سینٹرل بینک سے لون اٹھایا ہے، جس پر ہر ماہ سود کرنا پڑتا ہے، لیکن آمدنی اتنی ہے کہ سود میں بھری جانے والی رقم بہت معمولی ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک نیا مکان تمام جدید سہولتوں سے آراستہ تعمیر کیا، بڑے دھوم سے گھر بنی بھی کی تھی، تمام دوست احباب کو دعوت بھی دی تھی، تمام دوست احباب گھر دیکھ کر دعوت کھا کر بڑے ہی خوش ہوئے، تمام ہی نے میرے تاجرانہ ذہن اور عقل کی داد دی، اور اس سال میاں بیوی کا حج کا فارم بھی بن گیا ہے۔ دعا کرو کہ نمبر نکل جائے تاکہ بیت اللہ کی زیارت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر حاضری بھی نصیب ہو جائے۔ آپ اپنی ویڈیو کو سنائیں۔ الحمدللہ ویسے تو میں مزے میں ہوں، لیکن کچھ پریشانی تھی۔ اس سال کھیت میں کپاس گنا وغیرہ لگانا تھا، جس کے لیے پانی کی ضرورت تھی۔ ندی سے کھیت تک پائپ لائن کا خرچ تقریباً 2 لاکھ کے قریب ہوتا تھا۔ اتنے پیسے میرے پاس نہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ جزائے خیر نے شاہنواز فقیر کو کہ وہ عین وقت میں میرے کام آ گئے، اور انہوں نے 2 لاکھ روپے 10 روپے سینکڑا ماہانہ سود کے حساب سے قرض دے کر مجھے نوازا۔ اس طرح میرا کام ہو گیا، پائپ لائن ہو گئی، کپاس گنا ہو گیا، کپاس میں بونے لگ گئے، گنا کمر اتنا ہو گیا۔ اب دعا کرو اللہ پاک اس فصل کو آفت سے بچائے تاکہ یہ سودی قرض بھی ادا ہو جائے اور باقی رقم سے عید 12 بچوں کی شادی بیاہ کے جتنے دیگر ضرورتیں پوری ہو جائے۔ حامد میاں کیا آپ بھی خیریت سے؟ اللہ کا کرم ہے، میں خوشحال ہوں۔ ہر ماہ 25,000 روپے تنخواہ ملتی ہے، جس سے گھر کے تمام اخراجات پورے ہو جاتے ہیں۔ اور آپ کی بھابھی کی یہ خواہش تھی کہ گھر میں کوئی چھوٹی موٹی 4 گاڑی ہوتی تو اچھا ہوتا، تاکہ عزیزوں و اقارب کی خوشی اور غمی میں شرکت اور چھٹی کے دنوں میں گھومنے پھرنے اور خیر و زیاد کے کام آتی۔ اللہ کا اتنا احسان ہے تو اس نے ادھر اپنی خواہش کا اظہار کیا، اور دوسرے ہی دن میں نے لوک سبھا اخبار میں اسٹیٹ بینک کا اشتہار پڑھا کہ انتہائی کم سود پر آپ اپنی گاڑی خرید سکتے ہیں۔ پھر کیا تھا، میں نے اسی وقت موجود موبائل نمبر ملایا اور تمام معلومات حاصل کی، براہ راست رابطہ کر کے ضروری کاغذات تیار کیے، اور الحمدللہ اس ماہ کی 1 تاریخ کو بالکل نئی 55 فارچونر گاڑی شو روم سے اٹھا لی۔ اس طرح آپ کی بھابھی کی خواہش پوری ہو گئی۔ اور آج کل آپ کی کیا مصروفیت ہے؟ اپنا کیا پوچھنا، 4 انگلیاں گھی میں آج کل مارکیٹ میں ایک نئی کمپنی وجود میں آئی ہے، اس میں کچھ نہیں کرنے کا، صرف 500 روپے دے کر اس کا ممبر بن جانے کا۔ ممبر بننے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کمپنی کی جو چیزیں مارکیٹ میں مثلا 40 روپے میں ملتی ہے، وہ اس ممبر کو 30 روپے میں ملے گی۔ اور اس ممبر شخص پر یہ لازم ہوتا ہے کہ وہ 5 ممبر تیار کرے۔ اگر وہ 5 ممبر تیار کرتا ہے تو اسے اس ممبر سازی پر 1000 روپے ملتے ہیں، اور جب اس کے بنائے ہوئے یہ 5 ممبر الگ سے اپنے ممبر تیار کرتے ہیں تو کمپنی والے اس کا فائدہ بھی کرنے والے شخصوں کو دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ سلسلہ جتنے آگے بڑھتا جاتا ہے اس کا فائدہ بھی کرنے والے شخصوں کو ہوتا رہتا ہے۔ میں نے الحمدللہ اس کمپنی کو 500 روپے دے کر اس کی ممبرشپ حاصل کر لی ہے، اور مزید فائدے کی آوشکتا امید ہے۔ 3 ممبر بنا چکا ہوں اور وہ بھی اپنے ممبر بنا رہے ہیں۔ اور اگر محلے میں سے کسی کو بننا ہے تو بولو، ابھی تمہارے نام لکھ دیتا ہوں۔ 2 ممبر ابھی باقی ہے۔ دوسری بات یہ کہ شادی کے موقع پر میں نے سسرے سے کچھ نقد رقم ہدیہ کی تھی۔ میں نے سوچا ان پیسوں کو گھر میں رکھنے سے یہ ڈبل ہونے والے تو ہے نہیں، اس لیے میں نے ان پیسوں کو 5 سال کے لیے ڈپازٹ میں جمع کرا دیے۔ 4 سال ہو گئے، 5واں سال ہے، وہ جمع کرے گی رقم اب مجھ کو ڈبل ہو کر ملے گی۔ اے پٹھان صاحب، ابھی تو میرے سے نا۔ الحمدللہ میں آپ تمام لوگوں کی باتیں سن رہا تھا کہ آپ لوگ کس طرح ترقی کے راہ پر چل رہے ہیں۔ میرے نزدیک یہ کوئی ترقی نہیں ہے، ترقی وہ ہے جس میں راستہ رکھا ہے۔ ترقی کا ایسا راستہ کہ فٹاک سے آدمی کے پاس پیسے آ جاتے ہیں، اور ایک کروڑپتی آدمی دیکھتے ہی دیکھتے کروڑپتی بن جاتا ہے، ذرا بھی محنت نہیں کرنی پڑتی۔ میری پرانی عادت ہے کہ میں چلتے پھرتے 5-50 روپے کی لاٹری ٹکٹ کر لیتا ہوں، پھر اخبار میں اپنا لاٹری نمبر دیکھتا رہتا ہوں کہ میرا نمبر نکلا یا نہیں۔ ابھی 15 دن پہلے کی بات ہے کہ میں اخبار دیکھ رہا تو کیا ہی دیکھتا ہوں، اس میں میرے نام 1 کروڑ کی لاٹری لگ گئی۔ پھر کیا تھا، پورے خاندان میں خوشیاں منائی گئی، دوستوں نے میری دعوت کی، میں نے ایک انجینئر کو بلا کر ایک شاندار بنگلہ بنانے کا پلان ارادہ کیا۔
शोरूम से रब्ता करके मैं स्कॉर्पियो कार बुकिंग करवा ली है। 5-10 दिन में वो भी आने वाली है। दोस्तों ने मशवरा दिया कि अल्लाह ताला को आपको इतनी बड़ी रकम बिना किसी मेहनत और मशक्कत की देती है तो शुक्राने के मौके पर उम्रा कर लो। अल्हम्दुलिल्लाह दूर वालों से बातचीत भी हो गई है और इंशाअल्लाह 15 शाबान को घर के पूरे 5 अफराद के साथ उम्रा के लिए रवानगी होगी। दुआ करें अल्लाह ताला इस मुबारक सफर में सलामत अता फरमाए, आमीन। क्या बटे कैसी अपनी रोटी उसको बोलते हैं दिमाग, पठान का दिमाग, अब्दुल पठान का बच्चा तो ठहरा। भाइयों, मैंने आप लोगों की बातें सुनकर बहुत बड़ा अफसोस हुआ कि आप लोग मुसलमान होते हुए सूद, जुए, सट्टे और लाठी जैसे हराम कामों में मुब्तला हो। हम सब मुसलमान हैं। इस्लाम ने हमको सूद, जुए, सट्टे और हर गलत तरीके से माल कमाने और खाने से मना किया है। और मौलवी साहब, तुम मेरे मौलवी हो, मुफ्ती नहीं हो, तुमने कैसे कह दिया कि हम सूद और जुए में मुब्तला हैं? क्या किसी मुफ्ती ने ये फतवा दिया है कि कारोबार को तरक्की देने और काश्तकारी में जदीदकारी के लिए सूदी कर्ज लेना, इसी तरीके से लॉट पर गाड़ी उठाना और मल्टी लेवल कंपनी का मेंबर बनाना और लॉटरी के टिकट खरीदना शरअन नाजायज और हराम है? हाँ, मैंने जामिया इस्लामिया इरशाद उलूम वक्ल हुआ जो न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि मुल्क का एक अजीम दीनी इदारा है। उसके दारुल इफ्ता से एक शाही पम्फलेट जिसका उन्होंने सूद बचो बचाओ उसमें पढ़ा था। नहीं, मैं किसी इश्तिहार पम्फलेट पर एतबार नहीं करता। अगर आपको इश्तिहार पम्फलेट पर एतबार नहीं तो कल ये दारुल इफ्ता से रुजू करते हैं। कल संडे भी है, प्रोफेसर साहब की कॉलेज की छुट्टी है, आपकी दुकान बंद रहेगी। जहूर पटेल, शौकत खान और पठान साहब के फुर्सत अली खान है वैसे भी जाए करने पर दिन का अक्सर हिस्सा बुला देते हैं, तो कल ये अपने दारुल इफ्ता से रुजू करते हैं। नहीं, चलिए आगे चलते हैं। अभी चलो चलते हैं। मुफ्ती साहब आ जाइए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फरमाइए जनाब मौलाना, क्या हाल है, कैसे आना हुआ कि आज फजर की नमाज में कोई गड़बड़ तो नहीं हुई तो तमाम मुसल्लियों को लेकर हाजिर हुए? नहीं मुफ्ती साहब, बात ये नहीं, बात असल ये है कि ये हजरत हमारे मुसल्ली है। ये हक्कानी मियां शहर के बड़े ताजिरों में उनका शुमार होता है। इन्होंने अपनी तिजारत को फरोग और तरक्की देने के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से 50 लाख रुपए सूदी कर्ज लिया हुआ है। और दूसरे साथ जहूर पटेल है जिनकी अपनी एक जमीन है जिसकी जदीदकारी के लिए इन्होंने 7 से 2 लाख रुपए सूदी कर्ज लिया हुआ है। और तीसरे साथ अल्फा आई स्कूल के सीनियर प्रोफेसर है जिन्होंने बैकग्राउंड पर काम करी है। और चौथे साथ शौकत खान जो मल्टी लेवल मार्केटिंग के मेंबर है और इसके मेंबर साथी का काम करते हैं। और ये पठान साहब, कुछ रोज पहले इसकी 1 करोड़ की लात लगी है। जब मैंने इन तमाम को सूद के बारे में कहा तो उन्होंने मेरी बात का एतबार नहीं किया, तो इन तमाम को लेकर आप दामद बरकातहू की खिदमत में हाजिर हूं। अब आप मुझे बताइए कि जो काम ये कर रहे हैं आया वो शरअन नाजायज और हराम है या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, मुहतरम हज़रात, अल्लाह ताला का बेपाया फज़ल व एहसान है कि हम और आप सब मुसलमान हैं और हकीकी मानों में मुसलमान वही होता है जो अहकाम इस्लाम का पाबंद हो। इसीलिए हर मुसलमान पर लाजिम है कि कोई भी काम करने से पहले वो जान ले कि शरीयत इस सिलसिले में क्या कहती है, आया वो काम जायज है या नाजायज। जैसा कि फिक़ह का कायदा है, ला यजूज़ु लिमुस्लिमिन अन यतक़र्रबा अव यतक़ल्लक़ इल्ला बअद मअरिफ़ति हुक्मिल्लाहि फीही। आप हज़रात को चाहिए था कि आप पहले हुक्म खुदावंदी को मालूम करते, उसके बाद फिर कदम उठाते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया और गुनहगार हुए। क्योंकि सूद यानी असल कर्जा पर ज़्यादती और बिला मुआवजा माल और माल पर ज़्यादती, ख़्वाह या कम हो या ज़्यादा। और जुआ यानी बिल्कुल खतरे पर मुआवजा करना, अगर हालांकि दोनों जानिब में माल हो, शरअन नाजायज और हराम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है, अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। अल्लाह पाक ने खरीद और फरोख्त को हलाल किया और सूद को हराम करा दिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू रिबा अज़हाफन मुज़ाअफ़ा। ए ईमान वालों, सूद बढ़ा चढ़ा कर ना खाओ। दूसरी जगह इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व ज़रू मा बक़िया मिन रिबा इन कुंतुम मुक़िनीन फ़इन लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही। ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और अगर तुम ईमान रखते हो तो जितना सूद बाकी रह गया है उसको छोड़ दो। और अगर तुम ऐसा ना कर सको तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ। इस आयत अल्लाह अब्दुल माजिद तैयब रहमतुल्लाह फरमाते हैं, इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला मुसलमान को मुखातिब फरमाकर कह रहे हैं कि इस अमल से सूद अमल ना करोगे तो तुमसे बागियों और मुक़द्दम की तरह लड़ाई की जाएगी। इतनी सब तो वही कुरान मजीद में दूसरी मासियत और नाफरमानी के लिए नहीं आई है। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे जलील और क़द्र साबित है, मनक़ूल है कि सूद को भी छोड़ दो और उसके मुशाबह चीज़ों को भी।
ये सुबहान कुदरत कुरान वही कुदरत की नतीजा है। जब जिस्मानी बीमारियों का इलाज है, मरीज अगर किसी मर्ज को सफल में शिक्षा में पाता है तो एहतियात इलाज को सब तक मरका शुरू कर देता है। तो जो मुसलमान कपड़े का अदना दर्जा रखते हैं, उनको चाहिए कि सिर्फ खुले हुए सूद से ना बचें, बल्कि ऐसी और ऐसी माली और कारोबारी सूदों से भी बचते रहें जिनका सूद होना मुश्किल है। मुफ्ती साहब हदीस की रोशनी में सूद के बारे में तफसीर तो सुनाइए। जी हाँ, हमारे मुफ्ती भैया साहब आपको हदीस की रोशनी में और उनके सूद पर बयान करेंगे। जी हाँ, आइए आका प्यारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इरशादात को भी सुन लीजिए। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद खाने वाले पर, सूद देने वाले पर, सूदी तहरीर या हिसाब लिखने वाले पर और सूदी शहादत देने वाले पर लानत फरमाई है और ये फरमाया कि ये सब गुनाह में बराबर है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूद के औबाद 73 किस्म के हैं, उनमें से कम तर किस्म ऐसी है जैसे कोई अपने मां के साथ जिना करे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूद का 1 ग्राम जिसको आदमी हासिल कर लेता है वो अल्लाह ताला के नजदीक इस्लाम में 33 मर्तबा जिना करने से भी बड़ा ज़्यादा गुनाह है। मोहतरम मुफ्ती साहब, आपने कुरान और हदीस की रोशनी में सूद और जुए की हुकूमत को इतने अच्छे अंदाज से समझाया कि बात पूरी तरह से समझ में आ गई और अपने गुनहगार होने का एहसास भी हो चला। लेकिन मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आज पूरी दुनिया में सूदी कारोबार और मामलात का दौर हो रहा है, तो ऐसे में एक मुसलमान अपने दामन को किस तरह इससे बचा सकता है? क्या आपके पास उससे बचने के लिए कोई मुतबादिल सूरत भी है? जी हाँ, फिक़ह के बारे में आपको मुफ्ती साजिद साहब बता देंगे। हाँ, क्यों नहीं। इस्लाम ने अपने मानने वालों को सूद व इंटरेस्ट से बचने के तरीके बतलाए हैं। हकानी साहब, आप अपनी तिजारत को फरोग़ देने के लिए मुशारकत की सूरत को अपना सकते हैं। मुशारकत का तरीका कार है कि अगर आप कारोबार को तरक्की देने के लिए किसी से कोई कर्ज ले तो उसे अपने कारोबार में हिस्सेदार बनाएं और नफा की फीसद मुतय्यन कीजिए। अगर कारोबार में नुकसान हो तो आपका पार्टनर भी अपने सरमाया के तनासुब से नुकसान में आपका शरीक होगा। मसलन कारोबार में आपका सरमाया 700 रुपये हो और आपके पार्टनर का 300 रुपये, तो नुकसान की सूरत में आपका नुकसान 70% होगा और आपके पार्टनर का 30%। शिरकत के सूरत में किसी फरीक के लिए नफा के खास किरदार बताए करना, मसलन बेशर्त लगाना कि मुझे हर माह 100 रुपये नफा मिलना जरूरी है, दुरुस्त नहीं है। इसी तरह कि अगर किसी शख्स के पास तिजारत की सलाहियत है मगर सरमाया नहीं तो मुजरबत की सूरत को अपना सकता है। मुजरबत का तरीका क्या है कि एक शख्स का सरमाया हो, दूसरे शख्स की मेहनत और नफा दोनों की कमाई रजामंदी से तय किया जाए। उस सूरत में कारोबार में नफा हो तो तयशुदा मुआवजे के मुताबिक फरीकैन में तकसीम होगा। अगर नुकसान हो तो पहले उसकी तरफ की कारोबार में होने वाली नफासी की जाएगी। अगर नफा नुकसान दोनों बराबर हो तो फरीकैन में से किसी को भी कुछ नहीं मिलेगा। अगर नुकसान के नफास बढ़ जाने की सूरत में ये नुकसान सिर्फ और सिर्फ सरमाया लगाने वाले का होगा। पटेल साहब, आप अपनी ज़राअत को तरक्की देने के लिए मुज़ाहरत की सूरत को अपना सकते हैं। हमीद मियां, आप गाड़ी खरीदने के लिए मुराबा की सूरत को अपना सकते हैं। मुराबा का तरीका कार है कि अगर किसी शख्स को किसी चीज की जरूरत है और उसे खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं है तो जिस शख्स के पास पैसे है वो उस चीज को नकद खरीद कर जरूरतमंद शख्स को उधार बेच दे। शरअ ये तरीका जायज है। अगर बैंकों के मौजूदा निज़ाम में सूरत अपनाई जाती है तो जहाँ मुसलमान सूदी मामले से बचेंगे वहीं बैंक की तबाहकारी से बच जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मन अकला लुक़्मतुन मिन हरामिन lam tuqbal lahu salatun 40 laylatan wa lam tusaddaq lahu da'watun 40 sabahan wa kullu lahmin nabata min al-harami fadlahu la bihi wa inna luqmatal wahida min al-harami la tusbitu lahma। अगर कोई आदमी हराम का एक लुक़मा खाता है तो 40 दिन तक उसकी दुआ कबूल नहीं होती और जो गोश्त हराम माल से परिश पाता है तो जहन्नम उसकी ज्यादा मुश्किल है। हराम के लुक़मा से भी तो गोश्त पैदा होता है। मुफ्ती साहब, हम तमाम आपके बड़े शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना इतना कीमती वक्त देकर न सिर्फ सूद और जुए के ऊपर इशारा किया बल्कि उसे बचने की तमाम मुतबादिल सूरतें भी बतला दी। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। इसमें शुक्र है कि क्या बात है, ये तो हमारा फर्ज था जो हमने अदा किया।